Hello everyone. So this is your basis of classification lecture number 3, and here we are going to talk about the remaining basis of classification that has been left. And in the remaining basis of classification we have 4 things to discuss. The first one being the body symmetry, then we will discuss about body cavity, then we will move to segmentation, and then there is notochord. So these are the 4 bases of classification that is left, and now we are starting with the body symmetry. Gradually we move to the other 3. Okay, so body symmetry, I hope you know. Okay, and body symmetry, that means here we are talking about that how will be the shape and structure, how will be the shape and structure of an organism. That is what we are talking. Okay, that there will be some organism who will have a round body, there will be some organism who will have a very there will be no proper shape and size of that particular organism. Then there will be some organism with a cylindrical body. So depending upon the different shape and size that different organism shows, what we are doing, we are talking about body symmetry in order to understand that. And why talking about body symmetry is so important? Because talking about body symmetry is important because the better is the body symmetry, the better will be the ability of an organism to do its locomotion, to do any kind of movement. If an organism has a poor symmetry, poor shape and size of the body, then उसको move करने में बहुत problem होगा, है ना? तो जितना better symmetry होगा, उतना better mode of locomotion उसका होगा, उतना faster वो move कर सकेगा, उतना fluency में वो move कर सकता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? So that is why body symmetry का discussion is important. Okay, so on the basis of body symmetry, if we see, we will see 4 types of body symmetry are present in animal kingdom, and in these 4 types, the first type that we are going to discuss is asymmetrical, and we have already talked about asymmetrical kind of body symmetry. That means these organisms will have no definite shape and size. Okay, their body will have no definite shape and size. Okay, I hope you understand about whom we are talking over here, because asymmetrical kind of body we have already I have already spoke about it in my first lecture of basis of classification. Okay, so asymmetrical kind of body का अगर हम लोग example लिखे तो example हम लोगों को मिलेगा कौन? Sponges. And if you ask me a proper definition of this asymmetrical kind of organism, if you ask me a proper definition, then what we will write? We will write that any plane that passes through the central axis of the body, any plane that passes through the central axis of the body cannot cut the body into 2 equal halves. Okay, that means these organisms will look somewhat like this. Now this is the central point of its body. If we pass any plane through this central axis of the body, let it be a plane, transverse plane, longitudinal plane, or any plane, you pass any plane through the central axis of the body will never get divided into 2 equal halves. Now see, if I talk only about the longitudinal plane, if I cut the body only in a longitudinal plane, is this half and this half similar to one another? No, they are not identical, they are not of same size, same shape. So this is the technical definition of asymmetrical kind of body symmetry. Okay, so the organisms, those who have asymmetrical body, that is sponges. In sponges we will see that the plane will not cut their body into 2 equal halves. Okay, so this is your first type of body symmetry that we have talked about. You can pause and make a video of it. Okay, make a notes of it. Okay, so this is your next type of symmetry, which is called as what? Radial symmetry. Okay, so first one we got asymmetrical, ठीक है, जिसका notes I hope तुम लोगों ने बना लिया है. The second type is called as radial symmetry, and what is there in radial symmetry? We see that in radial symmetry the body is mostly round or oval. गोल है, round or oval. Okay, round or oval तो समझ में आएगा ही. अच्छा, The next thing is that if the body is round or oval, okay, this will be the central axis of the body. Now,
what is the unique thing in case of radial symmetry? The technical definition of radial symmetry will be that in case of radial symmetry, you pass any plane through the central axis of the body. Any plane, you pass any plane through the central axis of the body. Any plane can cut the body into two equal halves, but the halves can be identical or cannot be identical. आइडेंटिकल हो भी सकता है, आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोई भी प्लेन अगर मेन बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास होता है, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, सो दैट प्लेन कैन कट द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। दो हाफ एकदम इक्वल होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ द हाफ विल बी आइडेंटिकल। इट कैन बी आइडेंटिकल और इट कैनॉट बी आइडेंटिकल। ओके, सो हियर यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस। Okay, any plane, any plane passing through the central axis of the body can cut the body into two equal halves, but identical हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। These are your examples. Okay, कुछ एडल्ट स्पॉन्जेस में हम लोग को रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। मोस्टली स्पॉन्जेस में एसिमेट्रिकल होता है, बट कुछ एडल्ट स्पॉन्जेस उनमें हम लोग को रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। सिलेंटरेटा में हम लोग रेडियल सिमेट्री देखते हैं, टीनोफोरा में हम लोग रेडियल सिमेट्री देखते हैं। ठीक है ना। तो जो मैंने लोकोमोशन का बात जो मैंने किया था कि बेटर इज द सिमेट्री, बेटर विल बी द मोड ऑफ लोकोमोशन, वो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। जो स्पॉन्जेस है उसका बॉडी कैसा था, एकदम इरेगुलर। वो जब पानी में मूवमेंट करेगा उसका बॉडी को कितना ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन मिलेगा। लेकिन आज अगर एक गोल टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो उसका बॉडी का सरफेस आर मच स्मूदर, तो वो पानी को क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से पास कर सकता है। लेस विल बी द फ्रिक्शन, बेटर विल बी द मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है। सो दिस इज योर रेडियल सिमेट्री। आई होप यू अंडरस्टूड द रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट वी विल गो टू द थर्ड टाइप कॉल्ड एज बायरेडियल सिमेट्री। ठीक है, पॉज करके नोट बना लो। Okay, so this is your next type of symmetry. Okay, and this symmetry generally comes as an intermediate between number 2 and number 4. 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रेडियल सिमेट्री, 4 जो है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो नंबर 2 एंड नंबर 4 के बीच में देयर इज वन सिमेट्री प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड एज बायरेडियल सिमेट्री। ओके, सो व्हाट इज देयर इनसाइड द बायरेडियल सिमेट्री। बायरेडियल सिमेट्री में क्या मिलेगा, only two plane can cut the body into equal halves. Okay, what are those plane? ये जो प्लेन है ये प्लेन हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, और ये जो प्लेन है इस प्लेन को हम लोग बुला सकते हैं क्या, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ ट्रांसवर्स प्लेन. सो देयर आर टू प्लेन which can cut the body into two equal halves. One is longitudinal plane, the other one is transverse plane. Okay, so it can cut the body into two equal halves. Now what is the remaining part of the definition says the opposite halves will be identical. Okay, if after I pass two plane through the body of an organism, after I pass two plane, how many halves do I get? I get 4 halves, 1 2 3 and 4. Okay, यहां पे बोला जा रहा है the opposite halves are going to be identical whereas the adjacent halves will not be identical. That means 1 and 2 will not be identical. The 2 and 3 will not be identical. The 3 and 4, these are adjacent halves, they will not be identical. 1 and 4, they will not be identical. So the adjacent माने जो पास का होता है, adjacent वाला identical नहीं होगा, लेकिन identical होगा कौन कौन, identical होगा यहाँ पे 2 और 4 opposite, 1 and 3, समझ में आया ना, लेकिन 1 and 4 identical नहीं होगा, समझ में आया। सिमिलरली 1 और 2 नहीं होगा, 2 and 3 नहीं होगा, 3 and 4 नहीं होगा, बट ये होगा 2 will be identical to 4, 1 will be identical to 3. That is the proper definition of biradial symmetry. And in whom do we see this kind of symmetry? We see this kind of symmetry in case of adult ctenophores. Okay, so this is your third symmetry. Now we are moving towards the fourth, and the fourth one is called as bilateral symmetry. Okay, so you pause it and make notes. Okay, so this is your fourth symmetry which is called as bilateral symmetry. And in case of bilateral symmetry, what you can see that there will be only one plane which can cut the body into two equal halves as well as two identical halves. Okay, and the body of the organism is going to be a cylindrical one, थोड़ा सा स्ट्रेच लंबा टाइप का सिलिंड्रिकल टाइप का बॉडी होगा, एंड एक ही प्लेन उसको काट सकता है। वो कौन सा प्लेन है, दैट इज your longitudinal plane. So this is your longitudinal plane.
this is the cylindrical body, and you can see that the longitudinal plane is passing through the central axis of the body, and it is cutting the body into what? Two equal halves as well as two identical halves. Okay, so both the parts are going to be identical to it. Okay, there will be no any other plane which can cut the body into two equal halves. You can say maybe the end region of the body, you can say it like that, maybe the end region of the body is somewhat like this, somewhat like this. So under that circumstances, only this plane, the longitudinal plane, is cutting the body into two equal halves and two identical. If I now cut it like this, will it be equal? If I cut it like this, is this portion and this portion equal? No, it is not. Okay, is this portion and this portion identical? No, it is not. Hence this plane does not fit into the definition of the bilateral symmetry. So I hope you understood what is bilateral symmetry, and the examples will be Platy-Helmins 2 coordinates. Okay, so as you see, as we move along the animal kingdom, we are going to see better symmetry which comes, okay, like पिछला फाइलम से आगे का फाइलम में बेटर सिमेट्री है, स्पोंजेस में सिमेट्री है ही नहीं, सिलेंटेरेटा में थोड़ा सिमेट्री अच्छा हुआ, टीनोफोरा में थोड़ा और अच्छा हो गया सिमेट्री, एंड प्लेटी-हेल्मिन से तो जो सबसे टॉप लेवल का सिमेट्री है वो प्लेटी-हेल्मिन से लेके कोऑर्डिनेट्स तक रहेगा ही रहेगा. ठीक है, तो आई होप ये सिमेट्री का पोर्शन तुम लोग का क्लियर हुआ है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच इज द बॉडी कैविटी और बॉडी सीलॉम. And in the last class I already told you what body cavity is. Body cavity is the inner space inside our trunk region where several other organs are present. Body cavity का अलग अलग नाम सीलॉम and viscera that I have said in the last lecture. Okay, so you make notes of this. We are moving towards the next basis of classification. So we have come to our next basis, and the next basis is the body cavity. ठीक है, now we will classify animals on the basis of the nature of their body cavity. And what is the technical definition of the body cavity? The technical definition of body cavity is, yesterday I already made a diagram that if this is a human, if we consider this as a human, okay, if we consider this as a human, so this wall can be considered as is इंसान का क्या? Body wall. Okay, and what I can say, यहां से क्या आ रहा है, यहां से ऐसे करके एलिमेंट्री कैनल आ रहा है जो यहां आके ऐसे करके पेट बना रहा है, स्टोमक. ठीक है, देन स्टोमक से ऐसे करके यहां पे क्या होगा, ऐसे करके इंटेस्टाइन. समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इसको हम लोग बुला सकते हैं क्या वाल? गट वाल, है ना? तो द स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन द गट वाल एंड द बॉडी वाल, दैट मीन्स ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग क्या बुलाएंगे? ये है बॉडी कैविटी. स्टोमक के अंदर का जो जगह है वो बॉडी कैविटी में नहीं आएगा. स्टोमक के अंदर का जो जगह है वो तो स्टोमक का ल्यूमेन है, स्टोमक का अपना स्पेस है. मैं बोल रहा हूं ट्रंक के बारे में. ये जो हमारा ट्रंक है, ट्रंक, और उस ट्रंक के अंदर में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, तो बेसिकली समझ में आया ना? अगर इसको हम लोग उठा ले तो ये जो पूरा ट्रंक वाला रीजन है, वो ट्रंक वाला रीजन हमारा बॉडी कैविटी है. सो अगर टेक्निकल डेफिनेशन देखने जाए तो बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच का जो स्पेस है, दैट मींस ये स्पेस, ये स्पेस, उस स्पेस को हम लोग क्या बुलाते हैं? दैट स्पेस इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी. So I hope you understood what body cavity is, as well as I have explained you about germ layers in the first lecture of basis of classification. So अभी हम लोग बॉडी कैविटी को पढ़ेंगे उसके बेसिस पे, जो हम लोग जाम लेयर्स ऑलरेडी पढ़ के रख दिया है उसके बेसिस पे बॉडी कैविटी कैसे होता है वो पढ़ेंगे. बॉडी कैविटी आई होप तुम लोग का समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी अगर हम लोग देखें, वी आर गोइंग टू फाइंड 3 टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी. और 3 टाइप्स में जो पहला टाइप है उसको हम लोग बुलाते हैं क्या? उसको हम लोग बुलाते हैं एसिलोमेट टाइप ऑफ बॉडी कैविटी. एसिलोमेट, ठीक है, माने नो सिलोम. एसिलोमेट माने नो सिलोम. दैट मीन्स नो स्पेस इज प्रेजेंट, नो स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन दी, क्या लिख सकता हो? जर्मिनल लेयर्स. अभी तुम लोग ये सोच सकते हो कि यहाँ पे जो दिखाया है वो दिखाया है गट वाल एंड बॉडी वाल, एंड यहाँ पे जाम लेयर्स बोल रहे हैं. ये जाम लेयर्स के साथ ये कैसे कनेक्ट हो गया? इसको तुम लोग ऐसे समझ लो कि ये जो गट वाल है ना, ये जो गट वाल है, ये गट वाल बेसिकली बनता है किससे? एंडोडर्म से.
ठीक है ना। मोस्टली द गट वॉल इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म, जबकि बॉडी वॉल जो है वो बनता है एक्टोडर्म से। एंड एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में क्या होता है, मेसोडर्म। तो ये वो जगह है, ये बॉडी कैविटी जनरली मेसोडर्म में ही आता है, ठीक है ना। तो मेसोडर्म प्रोवाइड्स दैट एरिया ऑफ द बॉडी कैविटी, इसलिए मैं यहाँ पे जार्म लेयर्स लेके आया, ठीक है ना। और ये जो एसिलोमेट है, इस एसिलोमेट में अगर हम लोग जार्म लेयर्स को देखें, ऐसे करके अगर मैं जार्म लेयर्स को दिखाऊं, तो जार्म लेयर्स में क्या दिखेगा, ऐसे पकड़ लो, तीनों जार्म लेयर है, ये है एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म और ये है एंडोडर्म, है ना। एंड एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कंप्लीटली फिल्ड विद सेल्स है। मेसोडर्म में भी कोई जगह नहीं है, एंडोडर्म में भी कोई जगह नहीं है, एक्टोडर्म में भी कोई जगह नहीं है, ठीक है। अगर जगह होता तो मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ गोल गोल रखता, ऐसे ऐसे करके कुछ गोल गोल रखता। इसका मतलब क्या होता कि ये जो साइड का रीजन है ये पूरा सेल्स से भर्ती है, लेकिन यहाँ पे सेल्स के भर्ती होने के बावजूद भी बीच में एक खाली जगह प्रेजेंट है, ठीक है। और वही खाली जगह बॉडी कैविटी आगे जाके बनेगा। लेकिन यहाँ पे जर्मिनल लेयर्स, एसिलोमेट में क्या होगा, that all the germinal layers will be completely filled with some solid cells and there will be no space present in any of the germinal layers, ना एक्टो में, ना मेसो में, ना एंडो में। that is what is called as एसिलोमेट। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एसिलोमेट का एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्पोंजेस, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिलेंटेरेटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टीनोफोरा, ठीक है। ये सब हम लोग एसिलोमेट में लिख सकते हैं। एसिलोमेट में हम लोग आई गेस वी कैन ऑल्सो राइट अबाउट प्लेटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। तो दीज 4 फाइलम्स आर एसिलोमेट, दैट मीन्स इनके जर्मिनल लेयर्स के अंदर कोई स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। एंड आगे जाके भी जब ये जर्मिनल लेयर्स बॉडी का अलग अलग ऑर्गन वगैरह फॉर्म करेगा, तब भी बॉडी में कोई जगह का क्रिएट, कोई स्पेस का क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज योर एसिलोमेट टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड टाइप, दैट इज स्यूडोसिलोमेट। नाउ व्हाट इज स्यूडोसिलोमेट, दैट वी विल सी, ओके। इसका नोट बना लो, ठीक है। सो दिस इज योर द नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी कैविटी, द नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉडी सिलोम, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्यूडोसिलोम बुलाते हैं, ठीक है। तो स्यूडोसिलोम में हम लोग क्या दिखेंगे, ये है सेकंड टाइप, ठीक है। और स्यूडोसिलोमेट हम लोग बुला रहे, पहला वाला था एसिलोमेट, ए माने नो सिलोम, तो उसमें हम लोगों ने देखा बॉडी में कोई जगह नहीं था। स्यूडोसिलोमेट, स्यूडो का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो हम लोग बोल रहे हैं कि स्यूडोसिलोमेट इज अ फॉल्स सिलोम। सो व्हाट इज द बेसिस under which you say that one coelom is a false coelom and the another coelom is a true coelom, because जो थर्ड टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम लोग ट्रू coelom बुलाएंगे, यू coelomate हम लोग उसको बुलाते हैं। यू coelomate का मतलब होता है ट्रू coelom, ठीक है। तो नंबर 2 इज स्यूडो coelom, ठीक है। नंबर 3 इज यू coelomate, दैट मींस ट्रू coelom। सो एक को हम लोग ट्रू बुला रहे, एक को हम लोग फॉल्स बुला रहे, दोनों का कुछ बेसिस तो होगा जिसमें हम लोग एक को फॉल्स एक को ट्रू बुला रहे। देखो जैसे कि मैंने समझाया अभी थोड़ा 2 मिनट पहले कि बॉडी कैविटी को मेनली किसके अंदर होना चाहिए, कौन प्रोवाइड करता है मेनली वो जगह जहां पे बॉडी कैविटी कैन बी फॉर्म, दैट जगह इज प्रोवाइडेड बाय द मेसोडर्म। सो इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज द कैविटी, इफ एन ऑर्गेनिज्म हैज अ कैविटी बट इट इज नॉट प्रेजेंट कंप्लीटली इनसाइड द मेसोडर्म, तो उसको क्या बुलाएंगे, स्यूडोसिलोम। और अगर किसी के पास बॉडी कैविटी है और वो मेसोडर्म के अंदर है, उसको क्या बुलाएंगे, ट्रू सिलोम। समझ में आया, मतलब मेसोडर्म के अंदर होना पड़ेगा ट्रू होने के लिए। बॉडी कैविटी है लेकिन मेसोडर्म के अंदर कंप्लीटली नहीं है, वो हो जाएगा स्यूडोसिलोम। तो यहाँ पे देखो मैंने एक्टो, मेसो, एंडो ऐसे करके ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होगा वो कुछ पाउचेस के फॉर्म में पाया जाता है, एंड दीज पाउचेस विल बी स्कैटर्ड रैंडमली लाइक दिस। देखो कुछ मेसोडर्म के अंदर है, कुछ मेसोडर्म और एक्टोडर्म में है, कुछ मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में है। तो इस तरीके का बॉडी कैविटी बॉडी में फॉर्म होना चालू होगा, बट दिस बॉडी कैविटी विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सम पाउचेस, ओके। एंड दिस पाउचेस विल नॉट बी कंप्लीटली प्रेजेंट इनसाइड द मेसोडर्म, दे विल बी प्रेजेंट हाफ इन द मेसोडर्म, हाफ इन द एक्टोडर्म, हाफ इन द मेसोडर्म, हाफ इन द एंडोडर्म, और सम विल बी ऑल्सो इन द मेसोडर्म। बट जो भी टोटलिटी में बॉडी कैविटी बना वो पूरा का पूरा मेसोडर्म के अंदर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, स्यूडोसिलोम हम लोग बुलाते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, इसके एग्जांपल में हम लोग को सिर्फ एक ही फाइलम मिलेगा जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है एस्केलमिन्थ। सो इन द बॉडी ऑफ एस्केलमिन्थ वी आर गोइंग टू विटनेस व्हाट टाइप ऑफ सिलोम, स्यूडोसिलोम इज व्हाट वी आर गोइंग टू
C in case of the body of Aschelminthes. Okay, so this is your pseudocoelomate. Now moving to the third type which is called as eucoelomate and trucoelom. उसके अंदर में हम लोग को फिर से दो डिवीजन मिलेगा, ठीक है, तो इसका नोट बना लो. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. So as I already told you that we are going to discuss the third type, and the third type is the trucoelom eucoelomate. And what is the basis of eucoelomate? That the entire body cavity will be lined by whom? Will be lined by मेसोडार्म. ठीक है, अगर बॉडी के अंदर कोई भी स्पेस प्रेजेंट है, कोई भी सीलोम प्रेजेंट है, तो वो कंप्लीटली मेसोडार्म के अंदर होना ही पड़ेगा, तभी इसको हम लोग ट्रूसीलोम बुलाएंगे. ठीक है, तो ट्रूसीलोम में हम लोग को मिलेगा कितना टाइप्स? ट्रूसीलोम में हम लोग को मिलेगा 2 टाइप्स. इस 2 टाइप में जो पहला टाइप है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? उसको हम लोग बुलाते हैं सीजोसीलोम. ठीक है, एंड अनदर टाइप हम लोग को मिलेगा, उसको हम लोग बुलाते हैं क्या? उसको हम लोग बुलाते हैं एंटेरोसीलोम. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रूसीलोम. ओके, सो सीजोसीलोम जो है, सीजोसीलोम में हम लोग को क्या मिलेगा? दैट जो बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी is still in the form of pouches. The body cavity is still in the form of pouches, but starts to accumulate in the splitted portion of मेसोडार्म. इन द स्प्लिटेड पोर्शन ऑफ मेसोडार्म. इसका मतलब कि अब अगर हम लोग जर्मिनल लेयर्स को वापस से देखें तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? ठीक है, एक्टो एंड एंडो को मैं इसमें छोटा रख रहा हूं क्योंकि इनका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है. ये एक्टो, ये मेसो, ये एंडो. ठीक है, इन केस ऑफ सीजोसीलोम एनिमल्स व्हाट वी विल सी कि मेसोडार्म क्या करेगा? अपना यहां पे ना एक ऐसा करके स्प्लिटेड रीजन क्रिएट करेगा. दैट मीन्स ये जगह में सॉलिड सेल पूरा भरती है. ये जो जगह है, दिस इज द प्लेस विच इज कंप्लीटली फिल्ड विथ सॉलिड सेल्स. ये सब जगह सॉलिड सेल्स से पूरा भरती है, लेकिन ये जो जगह है ये खाली है. माने मेसोडार्म ऐसे करके स्प्लिट करके एक जगह का क्रिएशन किया है, और वो जो जगह है उस जगह पे हम लोग देखेंगे सिलोमिक पाउचेस क्या होगा, ऐसे करके गैदर करने लगेगा. ठीक है, इसके पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा? सिलोमिक पाउचेस जो था, इट वाज रैंडम. इट वाज हाफ इन मेसोडार्म, हाफ इन एक्टोडार्म, हाफ इन मेसोडार्म, हाफ इन एंडोडार्म. What do you see here? That those pouches which was half into mesoderm, half into ectoderm, they have come and they have gathered together and they have entered or they have accumulated themselves in the split of the mesoderm. So at least we can say or not that now the coelom is present in pouches. That's okay, but it is inside the mesoderm, in the split of the mesoderm. So it has come inside the mesoderm. That means true coelom. एग्जाम्पल में हम लोग को क्या मिलेगा? एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड देन वी विल ऑल्सो गेट मोलास्का. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट सब टाइप ऑफ ट्रूसीलोम. दिस इज द सेकेंड वन. एंटेरोसीलोम में हम लोग को क्या मिलेगा? दैट इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा दैट कि सिलोमिक पाउचेस आर united into one uniform, or you can say one uniform or common cavity lined by mesoderm from all the sides. लाइंड बाय मेसोडर्म फ्रॉम ऑल दी साइड्स. ठीक है, इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि जो पाउचेस है उसको मेसोडर्म चारों तरफ से बंद कर लेगा. एज वेल एज जो पाउचेस है ये अब और पाउचेस के फॉर्म में नहीं रहेगा. पाउच के बीच में होगा फ्यूजन, जिसके वजह से एक यूनिफॉर्म बॉडी कैविटी का क्रिएशन होगा. ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें डायग्राम, तो इसका डायग्राम से ही समझ जाओगे तुम लोग डेफिनेशन. ठीक है, ये है एक्टो, ये है एंडो, और ऑब्वियसली ये है मेसो. इसमें देखो मेसोडर्म स्प्लिट हुआ था, पाउचेस सब उस स्प्लिट के अंदर आ गया. अब मैं बोल रहा हूं ये सारा पाउचेस एक दूसरे के साथ जुड़ गया, और जुड़ के यहाँ पे मेसोडर्म अगर मैं बोलूं तो वो क्या कर रहा है?
ऑल दी साइड से तो कवर नहीं कर रहा है, मेसोडर्म के अंदर जरूर है पाउचेस बट ऑल दी साइड से तो कवर ही नहीं आ रहा है, यहां थोड़ा रह गया, समझ में आया ना। तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये सब पाउचेस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया और फ्यूज होके कंप्लीटली मेसोडर्म के अंदर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यहां पे अब हम लोग क्या देखेंगे, ये है मेसोडर्म, ये है वो रीजन जहां पे क्या प्रेजेंट है, जहां पे प्रेजेंट है सॉलिड सेल्स, यहां पे प्रेजेंट है सॉलिड सेल्स, और ये बीच का जगह जो है वो है खाली जगह, वो है सीलोम, जहां पे अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम्स आएगा, आके वहां पे जगह लेगा एंड ये पाउचेस फ्यूज होके ऐसा एक यूनिफॉर्म सीलोम में कन्वर्ट हो गया। इसको हम लोग एंटेरोसीलोम बुलाते हैं, ठीक है। तो एंटेरोसीलोम में एग्जांपल अगर मुझे लिखना है तो एंटेरोसीलोम में मैं क्या एग्जांपल लिखूंगा, जो रिमेनिंग है मतलब कौन रिमेनिंग है, इकाइनोडर्माटा टू कॉर्डेट्स। तो इकाइनोडर्माटा टू कॉर्डेट्स जो है उनमें है एंटेरोसीलोम। तो अगर तुम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाई इट इज कंसीडर्ड दैट ह्यूमंस आर मोर क्लोजर टू स्टारफिश इकाइनोडर्म देन मॉस्किटो, ठीक है, तो उसमें तो एक मैंने बोला था ट्यूब विद इन ट्यूब, वो वाला तो डेफिनेशन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर 2 मार्क का आ गया उसमें तुम लोग क्या कर सकते हो, ये भी ऐड कर सकते हो कि नहीं कि ह्यूमन का भी एंटेरोसीलोम एंड क्या बोलते हैं इसका भी क्या नाम है, इकाइनोडर्माटा का भी एंटेरोसीलोम, तो सीलोम का भी हम लोग का भाईचारा है, इसलिए वो हम लोगों से क्लोज है, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा का सीलोम क्या होगा, ऐसा ये, तो आर्थ्रोपोडा का सीलोम अलग, मॉस्किटो का सीलोम अलग, हमारा सीलोम अलग, तो वो हमसे थोड़ा इवोल्यूशनरी दूर है, ठीक है। तो ये है द डिस्कशन ऑफ बॉडी कैविटी। नेक्स्ट 2 छोटा डिस्कशन बाकी है, वो अभी हम लोग कर लेंगे, इसका तुम लोग नोट बना लो, ठीक है। ठीक है, सो दिस इज योर नेक्स्ट बेसिस दैट इज सेगमेंटेशन, ठीक है। एंड सेगमेंटेशन में हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट दैट किसी एनिमल, कोई एनिमल ऐसा है जिसके बॉडी में हम लोग को कुछ लाइंस दिखाई देता है, ठीक है ना, एंड दोज लाइंस आर basically representing the segmentation that is present in the body of that particular animal. Okay, so segments that will be present is called as metameres. Okay, and the segmentation का जो मतलब the presence of segmentation in the body of some animal, that phenomenon can be called as metameric segmentation. Suppose if you see a leech, if you see an earthworm, what you will see in those animal, their body has some lines present in them, and those lines which is present in their body are the representation of the presence of segments, and if there is segments present in the body of an animal, that is called as metameric segmentation. Okay, so segmentation is of 2 types. Similarly, one is true segmentation, one is pseudo segmentation. So what is the basis between the 2 segmentation? Okay, the first basis is that the segmentation should be a result. Okay, जो segmentation होगा वो segmentation should be a result of what? It should be a result of mesoderm. अगर बॉडी में सेगमेंटेशन मेसोडर्म कर रहा है तो उसको हम लोग ट्रू बुलाते हैं, और अगर बॉडी में सेगमेंटेशन एक्टोडर्म कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्यूडो सेगमेंटेशन बुलाते हैं, ठीक है। तो पहला बेसिस की कौन सा जर्मिनल लेयर सेगमेंटेशन कर रहा है, अगर मेसोडर्म कर रहा है ट्रू, अगर एक्टोडर्म कर रहा है फॉल्स, ये पहला बेसिस है। सेकंड बेसिस क्या है कि जो सेगमेंटेशन होगा वो सेगमेंटेशन हम लोग को 2 लेवल पे दिखना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो सेगमेंटेशन हम लोग को कहां दिखा, यहां दिखा, ये क्या है, ये है बॉडी वॉल, एज वेल एज हम लोग को यहां दिखा, ये क्या है, गट वॉल, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, ये हम लोग ऑर्गेनिज्म का एलिमेंट्री कैनल कंसीडर कर सकते हैं, ये माउथ, ये एनस, तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है तो वो सेगमेंट्स का जो मार्क है वो मार्क हम लोग को बॉडी वॉल में भी दिखना होगा, एज वेल एज हम लोग को गट वॉल में भी दिखना होगा। दैट मींस एक्सटर्नली भी दिखना है होगा या एज वेल एज इंटरनली भी दिखना होगा, या फिर ओनली इंटरनली भी अगर दिखता है तो भी वो ट्रू सेगमेंटेशन है। तो एक्सटर्नली इंटरनली बॉडी वॉल गट वॉल दोनों में सेगमेंटेशन का मार्क रहना पड़ेगा तब ट्रू, या फिर अगर सिर्फ इंटरनली भी प्रेजेंट है, एक्सटर्नली नहीं है बोले सिर्फ इंटरनली है, तो उसको भी हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखा है, व्हेन द सेगमेंटेशन इज ड्यू टू मेसोडर्म एंड इज प्रेजेंट बोथ इन द बॉडी वॉल एक्सटर्नली एज वेल एज गट वॉल इंटरनली, और ओनली इंटरनली, दैट इज सिर्फ अगर गट वॉल में भी हुआ तो भी उसको हम लोग ट्रू सेगमेंटेशन बुलाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लिखूं तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग को मिलेगा कौन, हम लोग को मिलेगा एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर हम लोग को बहुत सारा ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जैसे कि आर्थवर्म मिलेगा। आर्थवर्म के बॉडी में 120 सेगमेंट्स होता है, दैट मींस 120 मेटामेयर्स होता है।
लीच के बॉडी में 33 सेगमेंट्स होता है, ठीक है। तो एनेलिडा शोज ट्रू सेगमेंटेशन। व्हाट इज स्यूडो सेगमेंटेशन? अगर एक्टोडार्म, ठीक है कि नहीं, अगर एक्टोडार्म सेगमेंटेशन लाता है, स्यूडो फॉल्स। और अगर सेगमेंटेशन हम लोग को सिर्फ एक्सटर्नली दिखाई दिया, अगर सेगमेंटेशन सिर्फ बॉडी वॉल में ही प्रेजेंट है, गट वॉल में उसका नामो निशानी नहीं है, उस तरीके का सेगमेंटेशन को हम लोग क्या बुलाते हैं? स्यूडो सेगमेंटेशन बुलाते हैं। एंड इसका एग्जांपल में हम लोग को मिलेगा कौन? आर्थ्रोपोड्स मिलेगा एंड सेफालोकॉर्डाटा मिलेगा, ठीक है। तो ये दो ग्रुप है जो स्यूडो सेगमेंटेशन शो करता है। सो दिस इज योर अनदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकॉर्ड एंड उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। यू मेक अ वेरी क्लियर नोट्स ऑफ व्हाट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड हियर, ओके। सो द लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच इज लेफ्ट इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड हम लोग को क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो व्हाट इज बेसिकली नोटोकॉर्ड? तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट नोटोकॉर्ड, ये नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड इज बेसिकली इट इज रॉड लाइक, it is a rod like cylindrical and sheathed structure that forms the primitive axis of the body, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड जो है, ये नोटोकॉर्ड बेसिकली क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म एम्ब्रायो के लेवल पे रहता है ना, तो वो नोटोकॉर्ड आता है और वो नोटोकॉर्ड आके बॉडी का जो मेन बेस होता है, वो मेन बेस का फॉर्मेशन करता है, जो बॉडी का एक्चुअल स्ट्रेंथ बनता है बाद में जाके, ठीक है ना। इसको अगर मैं तुम लोग को अच्छे से समझाऊं, दैट मीन्स हम लोग जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहेंगे, ठीक है ना, तो वी विल लुक समवॉट लाइक दिस, ऐसे करके हम लोग रहते हैं। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रायो, ठीक है ना। तो हम लोग जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहेंगे, हम लोग जब एम्ब्रायो रहेंगे, तब हमारे बॉडी में हमारा जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम लोग बोलते हैं, आवर बैकबोन, ये बैकबोन का फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होता है। पहले क्या फॉर्म होगा? पहले यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? यही है नोटोकॉर्ड। समझ में आ रहा है ना। तो हमारा बॉडी का जो मेन एक्सिस है, मेन सपोर्ट है, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनिशियली नोटोकॉर्ड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट नोटोकॉर्ड इज। अब नोटोकॉर्ड किन में प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड यहां पे मैं लिखता हूं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कौन? कॉर्डेट्स। तो देखो ये कॉर्डेट्स जो नाम है, फाइलम नंबर 11 कॉर्डेट्स, ये कॉर्डेट्स नाम आया कहां से? जिनमें नोटोकॉर्ड, उन्हीं को कॉर्डेट्स बुलाएंगे, ठीक है। जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं, उनको नॉन कॉर्डेट्स बुलाएंगे। तो नॉन कॉर्डेट्स कौन होगा? फाइलम 1 से लेके फाइलम 10, दे आर नॉन कॉर्डेट्स। उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं आता है, और जिनके बॉडी में नोटोकॉर्ड आता है वो हो जाएगा कॉर्डेट, दैट इज फाइलम कॉर्डाटा, फाइलम नंबर 11, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फाइलम नंबर 11 है हमारा, ठीक है। एंड अगर तुम लोग मुझे पूछो कि नॉन कॉर्डेट्स तो फिर कौन है, नॉन कॉर्डेट्स फिर कौन है, तो नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएगा कौन? नॉन कॉर्डेट्स में आ जाएगा फाइलम 1 से लेके फाइलम 10, वो है नॉन कॉर्डेट्स, क्योंकि उनके बॉडी में नोटोकॉर्ड नहीं आता है, ठीक है। अब कॉर्डेट में भी नोटोकॉर्ड का एक अलग खेल है। क्या खेल है? कॉर्डेट्स में हम लोग को कितना सब फाइलम मिला था? 3, यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा, 3 मिला, ठीक है ना। तो अभी इन 3 सब फाइलम में भी देयर इज अ खेल, there is a locha present. What is that locha? Locha is that in case of vertebrates, ठीक है, in case of vertebrates, vertebrate में नोटोकॉर्ड आता जरूर है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये नोटोकॉर्ड अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है into what? into vertebral column, जिसको अपन लोगों का क्या बुलाते हैं? बैकबोन बुलाते हैं, ठीक है ना। तो बैकबोन का फॉर्मेशन हो जाता है। नोटोकॉर्ड अपने आप को, एम्ब्रायो के स्टेज में नोटोकॉर्ड आएगा, लेकिन फिर वो नोटोकॉर्ड क्या हो जाएगा? चला जाएगा, या फिर यू कैन से दैट नोटोकॉर्ड विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू व्हाट? इनटू अ बोन व्हिच इज आवर बैकबोन, आल्सो कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम।
तो जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है उनको क्या बुलाएंगे, वर्टिब्रेट्स, ठीक है कि नहीं। एंड जिनमें नोटोकॉर्ड के लेवल पे ही रह जाएगा एंड वो क्या हो जाएगा, वो वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट होगा, वो कौन कौन होगा, यूरोकॉर्डाटा एंड सेफालोकॉर्डाटा। तो यहां पे एक क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट ऑल vertebrates are chordates, that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. all vertebrates are chordates. हर वर्टिब्रेटा में पहले तो नोटोकॉर्ड आएगा और आने के बाद वो वर्टिब्रल कॉलम बनेगा. सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. काहे? क्योंकि यूरोकॉर्डाटा एंड सेफालोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड आएगा जरूर लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा. तो हेंस ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. समझ में आया ना? तो ये एक जो समझाना था, ठीक है, वो मैंने तुम लोग को यहाँ पे नोटोकॉर्ड का समझा दिया है. तो तुम लोग बोल सकते हो सर ये जो वर्ड है कॉर्डेट्स, वो कॉर्डेट से आया कॉर्डाटा है ना, और वो इसलिए आया क्योंकि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है. ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जिनमें होता है उनको कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड जिनमें होता है उनको कॉर्डाटा, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं वो नॉन कॉर्डेट. तो एक नाम बहुत क्या बोलते हैं, मतलब एक यहाँ पे तुम लोग का ये भी आ सकता है कि सर तो फिर इनवर्टिब्रेट्स कौन है. अब इनवर्टिब्रेट्स वही है जिन लोगों में वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. तो इनवर्टिब्रेट्स में तुम्हारा कौन कौन आ जाएगा? अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इनवर्टिब्रेट्स जब हम लोग बोलेंगे तो इनवर्टिब्रेट्स में अगर सिर्फ यूरोकॉर्डाटा एंड सेफालोकॉर्डाटा आएगा तो ये करेक्ट आंसर नहीं है. क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स में आएगा तुम्हारा कौन, इनवर्टिब्रेट्स में आएगा तुम्हारा फाइलम 1 to 10 प्लस यूरो प्लस सेफालो. ठीक है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट माने नो वर्टिब्रेट. अभी नो वर्टिब्रेट तो इनमें भी नहीं है. यूरोकॉर्डाटा में भी नोटोकॉर्ड रह जाएगा, सेफालोकॉर्डाटा में भी नोटोकॉर्ड रह जाएगा, वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनेगा. एज वेल एज ये जो पहला 10 फाइलम है उनमें भी तो नोटोकॉर्ड कहां से आ रहा है, उनमें भी तो वर्टिब्रल कॉलम कहां से बन रहा है. तो क्या होगा, इनवर्टिब्रेट्स माने फाइलम स्पोंजेस से लेके सेफालोकॉर्डाटा तक, एंड नॉन कॉर्डेट बोलने से फाइलम 1 से लेके फाइलम 10 तक. ठीक है, यहां पे एक और वर्ड तुम लोग को थोड़ा सा खटक सकता है एंड दैट वर्ड इज व्हाट, दैट वर्ड इज फाइलम नंबर 10 हेमिकॉर्डाटा. कि इसमें भी तो सर कॉर्डाटा वर्ड है तो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये डाउट भी आ सकता है. तो इस डाउट को भी क्लियर कर देते हैं. हेमी माने हाफ, कॉर्डाटा इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजेसिंग नोटोकॉर्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हेमिकॉर्डेट्स बोल रहे हैं माने आधा नोटोकॉर्ड. ये आधा नोटोकॉर्ड ये क्या खेल है? देखो पहले जब इतना ज्यादा साइंस डेवलप नहीं था, इतना ज्यादा रिसर्च वगैरह नहीं चलता था, तो हम लोगों को हेमिकॉर्डाटा भी एक कॉर्डेट लगता था. क्योंकि हेमिकॉर्डाटा के अंदर भी एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जरूर लेकिन उसमें थोड़ा सा लोचा है. ठीक है, लोचा क्या है वो अभी मैं पढ़ाऊंगा. तो पहले क्या होता था, फाइलम कॉर्डाटा के अंदर 4 सब फाइलम होता था. उनमें से पहला सब फाइलम होता था हेमिकॉर्डाटा. बाद में जब धीरे धीरे साइंस डेवलप हुआ, रिसर्च चला, बाद में पता चला ये हेमिकॉर्डाटा तो हम लोग को बुद्धू बना रहा है क्योंकि हेमिकॉर्डाटा में तो प्रॉपर नोटोकॉर्ड है ही नहीं. ठीक है, वो तो नोटोकॉर्ड के जैसा कुछ एक स्ट्रक्चर इमिट कर रहा है या नोटोकॉर्ड के जैसा एक स्ट्रक्चर अपने अंदर लेके बैठा है, लेकिन हम लोग अभी तक इसको नोटोकॉर्ड समझ रहे थे. इसलिए हेमिकॉर्डाटा को सब फाइलम 1 का दर्जा दिया था फाइलम कॉर्डेट के अंदर. तब 10 ही फाइलम था. बाद में हम लोगों ने क्या क्या बोला, नहीं हेमिकॉर्डाटा तो गेजू कर रहा है, हेमिकॉर्डाटा इज चीटिंग, इसके अंदर तो प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं है. फिर हम लोगों ने हेमिकॉर्डाटा को सब फाइलम 1 से निकाला और उसको एक अलग फाइलम का स्टेटस दिया, फाइलम नंबर 10 बनाया, कॉर्डाटा फाइलम नंबर 11 में चला गया. ठीक है, तो हेमिकॉर्डाटा जो है, हेमिकॉर्डाटा के अंदर ये जो नोटोकॉर्ड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ब्लैक में ही करते हैं, ये जो नोटोकॉर्ड है इसमें भी एक ऐसा ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. ठीक है, लेकिन इस नोटोकॉर्ड में और इस नोटोकॉर्ड में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, ये नोटोकॉर्ड कंप्लीटली ओपेक, कंप्लीटली फिल्ड विद सेल्स है. ये पाइप जैसा नहीं है, ये रॉड जैसा है. ये जो नोटोकॉर्ड मैंने ड्रॉ किया ये पाइप जैसा है, मतलब इसका बीच का रीजन होलो है, खाली है. ठीक है, तो इस तरीके के नोटोकॉर्ड को हम लोग क्या बुलाते हैं, इस तरीके के नोटोकॉर्ड को हम लोग बुलाते हैं स्टोमोकॉर्ड. ठीक है, तो हेमिकॉर्डाटा के अंदर नोटोकॉर्ड के जैसा दिखने लायक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं है क्योंकि वो होलो टाइप का है, पाइप टाइप का है, जिसको हम लोग स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं. तो हेंस हेमिकॉर्डेट्स में स्टोमोकॉर्ड होता है, दैट इज व्हाई उनको हम लोग कॉर्डेट नहीं बुलाएंगे. उसको कॉर्डेट से निकाल के हम लोगों ने अलग एक फाइलम में प्लेस किया, कॉर्डेट का अंदर प्लेस नहीं किया है. ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होता है. एंड मेरे जो साई विकास के स्टूडेंट्स हैं तुम लोग को इसका तो नोट बनाना ही है, उसके साथ एक एडिशनल
पेजेस में अटैचमेंट में छोड़ूंगा और उसका भी तुम लोग को नोट्स बनाना है. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी एंटरिंग इनटू द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, फाइलम स्पॉन्जेस. टिल देन टेक केयर, एंजॉय, हैव फन. बस अपना हाइजीन मेंटेन करो, कोरोना वायरस से बच के रहो. ठीक है, बाय बाय.